नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपको लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। प्रदीप जी लोहड़ी है, बिल्कुल। कल पोंगल भी है, Yes, बिहू भी yes. है और कुछ और भी है शायद, एक और भी है शायद। आई थिंक देयर आर 4 फेस्टिवल्स tomorrow. Yes. If I'm not wrong. मकर संक्रांति is हाँ, मकर संक्रांति तो है ही। Yes. वो सबसे बड़ा वही है। मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू और पोंगल, चारों जबरदस्त। Yes, yes, yes. Absolutely fantastic. India is the only country in the world where these things can happen. and you got the Kumbh Mela and then you got the Shabarimala Ayyappa. Yes. और वहाँ पर in Pamba lakhs and lakhs of devotees throng the Ayyappa Shed. And tomorrow Makar Sankranti is very very auspicious because उस time they say that there is a divine fire that comes out. That's right. In the skies. और सबसे बड़ी बात ये है कि महाकुंभ में तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ लोग हर रोज आ रहे हैं। Yes, sir. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ऑन दैट स्केल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं है और बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो मतलब आप देखिए, और पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग, पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल हु नाउ बिलीव इन हिंदुइज्म, हु नाउ बिलीव इन Hindu philosophy and stuff like that. I'm not sure, but whether it's a good thing or a bad thing, but it seems to be a good thing. People, as you were saying just now before the show started, that there were some people that you met, Americans, Yes, yes. Native Americans who had never heard of Hinduism, and their grandmother kept dreaming of Lord Ganesha, of Ganesh ji. Images of Ganesha coming in their dreams. Yes. They're from US, a couple and a couple from Great Britain, Scotland. So they decided to come here. They come here, visit all the religious places, spiritual places, and they go back. Wonderful, absolutely wonderful. फिलहाल आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, bonsoir in French, Pradeep ji. Abariako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And by the way, Hinduism, they say, is the fastest growing religion in East Africa. That's what they say. Yes, yes. So, I think ISKCON and Sri Ravi Shankar and beautiful bhajans and Jaggi Vasudev, I think people are actually converting. Yes, I yes. didn't know you could convert to Hinduism. I didn't even know that. I thought you had to be born a Hindu. But they sing it so well. I mean, yes, they do. Krishna bhajan ho, Beautiful. Shiv bhajan ho. अरे वो कृष्ण भजन क्या गाते हैं? Yes, yes. बहुत जबरदस्त चीज है. Wonderful. All right, let's go across. I think, do we have Mr. Darwala with us? I can't hear you. अली दरवाला साहब हैं हमारे साथ? किरण सोनावने जी हैं क्या? Do we have a guest with us? Will somebody tell me please? दरवाला साहब हैं? चलिए, let's go straight across to him. दरवाला साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव सर, प्रदीप सर, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening sir, जय सिया राम. वंदे मातरम। सर वंदे मातरम। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस टू यू। 2-3 चीजें हुई हैं आपके साथ। एक तो आपको क्या वो लता मंगेशकर अवार्ड मिला। आई डिडंट नो यू वर अ सिंगर आल्सो। आप गाते भी हैं सर? गाने गा के सुनाइए ना सर। You got the Lata Mangeshkar Memorial Award in Pune. Yeah, I got the Lata Mangeshkar Award for 2024. Yes. And तो गा के सुनाइए ना सर कुछ। अरे बिल्कुल नहीं, उसका कुछ नहीं। It is the mark of respect for in the social field, the work, the contribution for that. There is this organization by the Mangeshkar family. They felicited me in her honor. That's all. But the other thing Not is, I because must I'm a singer or congratulate you. something. I must congratulate the whole of India on the opening of the Z Mode tunnel. Z Mode is Z turn at Sonmarg. जो इसका सर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 2012 में, 2012-2013 में, और 2018 तक जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया. आई थिंक इट वाज ILNFS, they just withdrew, they said we can't do anything more. उसके बाद re-tendering was done. The tunnel has actually been completed, which is absolutely fantastic. And this will keep Sonmarg, Gangadhir and Leh connected to the rest of the country 24/7 all throughout the year, which is fantastic. जैसे मोदी जी ने कहा, लगता है कि संयोग ये है कि मेरे ही हाथों इसका उद्घाटन होना था, लेकिन असल में असली काम तो वही हुआ है. वी कैन सी इट. इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल. दरवाला साहब, आई एम श्योर यू कैन सी द फुटेज.
That's Modi ji inaugurating the Sonmarg tunnel. And the amazing part is, Omar Abdullah has been really praising Modi ji. I mean, which is amazing. Would you like to say something on that? Omar Abdullah साहब बोलते हैं मोदी जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमको. बोलिए सर, दारूवाला साहब. Correct. Speaking very pragmatically and to the point as to why Omar Abdullah ji must have praised Modi ji. Since he's into administration, he is running the reins in Jammu Kashmir, and being a chief minister, he must have seen how the prime minister means serious business, welfare of the citizens of the country, a state, no matter what, who is running the state, a person, a citizen should not be denied his rights, his part, his contribution, his bhagidari, as he says, sabki bhagidari. So Jammu Kashmir is it's a soft corner for Bharatiya Janata Party, for our stalwarts who have worked to getting the glory of Jammu Kashmir back. So this thing's happening, regardless that the BJP government is not in Jammu Kashmir. Still, you see, none of the development works have stopped. So this must have touched the heart of Honorable Omar Abdullah ji, and that is the reason he must have praised the Prime Minister. Honorable Prime Minister Modi ji has fulfilled 2 promises of the 3 that he made. और जो अब तीसरा प्रॉमिस है वो भी अब कर दीजिए, वो विच इज़ टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर. तो मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये लोकसभा के पटल पर भी बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर पूर्ण राज्य बहुत जल्दी बन जाएगा. लद्दाख ऑफ कोर्स विल रिमेन ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी. लेकिन मेरे खुद के लिए बड़ी मतलब प्रदीप जी बहुत खुशी की बात है Absolutely. कि ये सोनमर्ग टनल की वजह से अब दैट एरिया विल बी रिकनेक्टेड, और जोजिला पास की जो टनल है एक बार वो बन जाएगी 2028 में. उसके बाद दारूवाला साहब, डू यू नो द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स विल बिकम सो इजी. We will be able to get right to the border in less than 30 minutes. It will be fantastic. And hats off to Nitin Gadkari Saab, to the Defence Minister, to the Defence Ministry, to the Border Roads Department. Like, look at the wonderful job they've done. And this is called the Z-mode tunnel. Mode matlab turn. So it's a Z-shaped tunnel. ऐसे करके जाती है. And it's an engineering marvel. प्रदीप जी कुछ पूछना चाहेंगे? दारूवाला साहब, the most important thing, आपके दिल से दूरी, आपके दिल से दूरी वो भी खत्म हो गई और दिल्ली से भी दूरी खत्म हो गई. The work that Modi साहब has done in Jammu and Kashmir, Farooq Omar Abdullah praised Modi, and the most important thing, दारूवाला साहब, he said that एक भी बूथ में इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में. No, not even one single booth में कोई धांधली हुआ नहीं. Elections was free and fair. There was no establishment के तरफ से, there was no enforcement जो बोलते हैं ना pressure or coercive methods on any polling booth. Now this is a totally U-turn from what India Alliance blaming the BJP of EVMs. How do you see that? Omar Abdullah has broken away from the India Alliance, it seems, where election criticism is concerned. Daruwala Sahab. Yeah, Pradeep sir, Rajiv sir, on a larger prospect, on a larger scheme of things, the India Alliance, the members of the India Alliance, they are realizing step by step. Rajiv sir, for your record, 2 weeks back, Supriya Sule ma'am was heard saying that blaming the EVM is absolutely unwarranted, unwanted. It doesn't happen unless you have solid proof in your hand. You cannot blame the EVM. Now just go back for record. Just try and remember, go into the flashback, how fiercely Supriya ma'am was attacking each and every move of what our government was doing. So this is the mindset of Supriya Sule and Honorable Sharad Pawar ji. Uddhav Thackeray ji has become mild. Rajiv sir, Pradeep sir, if you just pick up my debates for last 1.5, 2 years, We were that about I've to been say that to you. given the opportunity on your prestigious channel, I have been saying the same thing. Even today, I'm not going back on my words. Uddhav ji Thackeray, Sharad Pawar ji, Ajit Pawar, all these people, they want good for the citizens in their state where they are elected, who they represent, Ji, and they those know none other than the Honorable Prime Minister, the Bharatiya Janata Party, Devendra Fadnavis, Amit Shah, Honorable Yogi ji can deliver. They mean business. They But mean congratulations to you. Government. सर आप यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ. सबसे पहले मैं अली दारूवाला साहब को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा. पिछले 1 साल से, 1.25 साल से बल्कि
दारूवाला साहब ये बार बार दोहरा रहे हैं कि एक दिन उद्धव ठाकरे जी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, और वो लग रहा है कि होने वाला है. You've done it. I mean, I am amazed. You have stuck to your guns. You've always said that Uddhav Thackeray ji is being misled, and in all likelihood, the Uddhav Thackeray Sena, or the whole Sena, so to speak, will be back with the BJP, and that seems to be happening. Daruwala Sahab, would you like to say something? Exactly. I would go one step ahead. Uddhavji has gone mild. He is not attacking the way he was being attacked. He was misled. Honorable Uddhav Thackeray ji is a man who is joined with Vichardhara. Sanatan is in his blood. Hinduism cannot be separated from Vandaniya Balasaheb Thackeray and Uddhav Thackeray. Since we do not have panelists on this, so I will not take the opportunity of speaking one-sidedly. Uddhav ji will realize, Aditya Thackeray ji will realize, and this man ki duri, this unwanted warrant, unwarranted hatred will end, it should end, and I am the mascot of peace. As a spokesperson, you must have realized last 2 years I have not spoken like a fool, I have not hurted people's sentiments, and I give due respect to the senior leaders. They are जनमानस, वो लोग लोक नेता है, उनको आप इतना हल्के में नहीं ले सकते. Nevertheless, let me tell you something now. Now, the bigger role that the people should come to know, and let it be that Nation Now can be the breaking news that there are so many member of parliament from Congress who are on them themselves in touch with BJP. They feel that the Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, and our entire cabinet is working relentlessly. Viksit Bharat ki or hum बढ़ rahe हैं, and I would not be surprised, as I always keep saying on your channel, no matter how much the people shout, कांग्रेस मुक्त भारत होने में ज्यादा दूर और देरी नहीं है. You will be surprised as to everybody will be joining the BJP on their own will. यहाँ पे कोई भी sabotage and kidnapping और ये आपका MLA को यहाँ लाओ, वो MP का काम करो, ये सब आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा. They are walking and they are walking into our office, and very soon you will see Congress Mukt Bharat. कांग्रेस मुक्त भारत. दारोगा साहब, I want to tell you something. आप जहां बोले थे वो सब ठीक था. You know, we saw Uddhav Thackeray ji softening towards Devendra Fadnavis ji. Aditya Thackeray ji going and meeting Devendra Fadnavis ji, photo निकाल के सब जगह वायरल करना. Sanjay Raut saying that we may join the BJP, we can join the BJP. ये सब ठीक हो रहा था. But Amit Shah ji ने कल ही शिरडी में आके he hit a hammer on the entire thing. He said उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल पहले 2019 में जिस प्रकार से बाला साहब के विचारों से दूर होके यहाँ के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने उनको उनका जगह दिखा दिया, इनसे कोई संबंध नहीं हो सकता. Now we saw something happening in Maharashtra and Amit Shah ji coming from Delhi and hitting a hammer on all what is actually happening. How do you see that? See, I'll tell you one thing. This misunderstanding between our Honorable Home Minister and Uddhav ji, which led to this fiasco, needs to be straightened. There are stalwarts. I am not saying everything is hunky-dory, but I am saying जो अंदर से जो आवाज निकलती है ना, वो हमारे सर एक विचारधारा से, सनातनी से, राम मंदिर की निर्माण से, उद्धव जी जो ऑनरेबल वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के सोच विचार से जुड़े हुए इंसान है. जो भी हुआ है बेशक अच्छा नहीं हुआ है, and I am sure Amit Shah ji is very angry, but he will also mellow down, tone down in due course of time. My respect and regard for you goes up, Ali Daruwala Sahab, considering the fact that you are perhaps in Maharashtra you are the most prominent Muslim in the BJP, और आप सनातन की बात कर रहे हैं जैसी आप बात करते हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त. At the moment with us from Lucknow, from the Samajwadi Party, we have Mr. Chanchal Kumar. Chanchal Kumar जी नमस्कार. नमस्कार. नेशन नाउ में आपका स्वागत है. मेरा नाम राजीव कुमार बजाज है और मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी हैं. चंचल कुमार जी, आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है और आपके साथ अली दारूवाला साहब हैं, हेड ऑफ द माइनॉरिटी सेल ऑफ पुणे ऑफ द बीजेपी. वो इस वक्त हमारे साथ हैं. और सर जी, अभी महाकुंभ चल रहा है. पिछला महाकुंभ आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था जब आपकी सरकार थी, तो उसमें और इसमें कोई फर्क आपको दिख रहा है क्या? इस बार की जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी है
या आपने जब महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया था वो ज्यादा अच्छा था? जरा बताएं, या दोनों बराबर है? बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, देरी से जुड़ पाया हूँ आपके साथ में। और जो सबसे मेन बात है राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में अभी एक बीजेपी के नेता मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठते हैं, अभी महाकुंभ में हैं। उन्होंने मेरे पास 7-8 वीडियो भेजी है और उन्होंने कहा मुझसे कि चंचल भाई, कम से कम हम लोग नहीं बोल सकते तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कम आप लोग बात कहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग तो कह ही रहे थे कि इतनी दुर्व्यवस्था है वहां पे, केवल और केवल कागजों में। और पूरे देश में महाकुंभ के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए केवल पानी की तरह प्रचार प्रसार में खर्च कर रही होगी सरकार। अगर हम बात करें तो मैं बताऊं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और मैंने छात्र राजनीति भी वहीं से करी है, वहीं से हम लोगों ने राजनीति की नर्सरी सीखी है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप इतने बस से बदतर इंतजाम, आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को रोक दिया जा रहा है, वहां से जो आप आगे बढ़ने के लिए 2-3 किलोमीटर की एरिया में कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली, मतलब एकदम अंधेरा है। मेरे को वीडियो भेज रखा है, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो अभी आपके पास भेज दूंगा। वो भी बीजेपी का नेता है, मैं नाम नहीं जिक्र करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन और आप अगर देखो आज के समय में बीजेपी के लोग केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, वहां पे 12-12, 15-15 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए और एक स्पेशल, यानी गुजरात के लोग आकर के, बहुत सारे लोग आकर के वहां पे पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी ने, आपको याद होगा 1989 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया। पूरे देश में जो है, पूरे देश में भाईचारे और अमन चैन को जो है बिगाड़ने का काम किया। और आज सुनिए, आज जब पीडीए की बात, हमारे नेता, हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पीडीए की बात करी 2024 में, उसका रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, तब देखा बीजेपी के लोगों ने कि अब हमारी दुकान बंद होने जा रही है। अब हमें जो है, जो धर्म का ध्रुवीकरण है उसके ऊपर हमें धर्म के नाम पे राजनीति करनी है। और उसी की तर्ज पे 2024 के रिजल्ट के बाद से ही आपको याद होगा सर, तो आपको याद होगा जो कांवड़ यात्रा चल रही थी उसमें ठेलों के ऊपर नाम लिखो, कौन से जाति हो, कहार हो, कोहार हो, बड़ई हो, ठठेर हो, धोबी हो, केवट हो, कुर्मी, मल्ला हो, जातियों के नाम लिखो, आप धर्म के नाम लिखो। आप इस तरीके से बीजेपी ने पहले वहां की बात करी। मैं 10 सेकंड में बात कहूंगा, ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। इनको केवल जो अंग्रेजों का मिशन अधूरा रह गया था, बांटो और राज करो वाला, जो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाला, उनके अधूरे सपनों को बीजेपी के लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन चंचल कुमार जी, हिंदू मुसलमान जाति को जाति में लड़ाने का काम, धर्म को धर्म में लड़ाने का काम इनका अभी की बात करें ना, केवल सत्ता में बने रहने के लिए भाई भाई में लड़ाओ। चंचल कुमार जी, अभी आपने कहा कि तकरीबन 7-8 वीडियो आपको भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही अलग अलग लोगों ने, कि किस तरीके से यहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा महाकुंभ को लेकर के। एक तो आपने बताया कि प्रयागराज स्टेशन से आगे जाकर के लोगों को रोक लिया गया है, वहां पर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, और आगे जाकर के हमने भी सुना है कि लोगों को बहुत 2 या 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, हालत जरा खराब है थोड़ी सी। और उसके अलावा सर मैं आपको बता दूं, जो बुजुर्ग है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है ना, ई रिक्शा की व्यवस्था, कुछ नहीं है। आप बताओ बुजुर्ग आदमी कैसे चल के जाएगा वहां पे। और दूसरी बात, चलो ठीक है, इस बात के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वहां लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है ना, तो अभी कुंभ में पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो पाई हैं। अभी लाइट तो है ही नहीं है, मतलब दिखा रहा है लाइट, मुझे वीडियो भेजा है, अगर आप कहो तो मैं अभी आपके चैनल पे ही प्ले कर दे रहा हूं तुरंत। और मैं बस सर आप इसको भेज दें, व्हील प्लेट आप इसको भेज दें सर जी। चंचल कुमार जी, आप जहां क्रिटिसिज्म कर रहे हो, चंचल कुमार जी, आप तुष्टिकरण की बातें, जहां मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ लैंड को हम लोग इसके लिए, कुंभ के लिए इस्तेमाल, हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं, हमें इतना बड़ा दरिया दिल दिखा, तो ये शहाबुद्दीन जी जो मौलाना जी कह रहे हैं कि वक्फ लैंड है और यूटिलाइज कर रहे हैं, और योगी जी का रिस्पॉन्स हुआ था कि भू माफिया जिस प्रकार से वक्फ को हाईजैक कर दिया है, तो क्या ये तुष्टिकरण नहीं कि आप इस चीज को बात नहीं करते कि मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा, बट वही जो गलत छोटे छोटे चीज वहां पर। आप ये देखो, ये वीडियो देखो, आप इसमें पूरी की पूरी लाइट ही नहीं है, मतलब खैर आप में लाइट दिख रही है, पूरी की पूरी वीडियो अगर मैं आपको भेज दूंगा, दिखा दीजिएगा अपने चैनल से। आप विश्वास नहीं करो, लाइट ही नहीं है, पूरे तंबू लगे हुए, लाइट गायब है। ये मौलाना शहाबुद्दीन बात कर रहे हो आप,
मुझे आप बताओ, समाजवादी लोग कभी तुष्टीकरण की बात ही नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद के अंदर अगर आप बात करोगे तो सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया, आपको विश्वविद्यालय देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के लोग, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और अगर हम विकास की बात करें, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे अयोध्या की बात आप कर लीजिए, अयोध्या में राम कथा संग्रहालय से लेकर राम की पौड़ी से लेकर के समाजवादी सरकार ने ही काम किए हैं जी। बट चंचल लेकिन कुमार जी, बीजेपी के लोग, आज भी सबसे पॉपुलर मोदी जी और योगी जी है इस महाकुंभ में। वहां ऐसे खबर आ रहा है कि जितने कटआउट्स हैं मोदी जी और योगी जी अरे के, कोई- पूरे दुनिया जितने विदेशी आए सब कटआउट सेल्फी लगाने से नहीं हो सेल्फी जाएंगे। सेल्फी खींचने वो में जो लोग कटआउट, उसमें बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं मोदी जी और योगी जी का नूरानी चेहरा, उससे नहीं हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। जनता वहां पे पूछ रही, मैंने तो कहा कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने मेरे को वीडियो भेजा है, कोई सामान्य व्यक्ति ने वीडियो नहीं भेजा है। जनता सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ, मोदी जी योगी जी के कटआउट्स में, और कतार लगे हैं सेल्फीज लेने में। क्या ये पॉपुलैरिटी दिखला नहीं रही है चंचल कुमार जी? अरे दोस्त, आप, अब मैं क्या बताऊं आपको, आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। संत समाज आज खुश है, अगर संत समाज पूरे खुश है जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। और मोदी कोई साहब ने कहा संत इस बात का पूरी तरीके से 1.5 विरोध लाख कर रहे करोड़ हैं। का क्या बिजनेस पता जनरेट हो रहा है। 12,000 के कॉटेज में, जहां पे हमारा कुंभ था, जहां पे सब कुछ समानता का, समान रूप से लोग दर्शन करते थे, समान लोग उसका स्नान करते थे, अब वो वीआईपी घाट बन गया है सर। सर, एक चीज आपने बनाए गए। कही चंचल कुमार आपको साहब, मैं सुनकर चाहूंगा क्या आश्चर्य होगा कि सर अब जो उसको जरा भगवान विस्तार के से दर्शन बताएं। में एक मिनट, बड़े एक मिनट। आप अगर 20,000 25,000 रुपए दोगे तो वहां पे वीआईपी घाट सर, का मैं- स्नान करोगे। सर, मैं सवाल भूल अभी जाऊंगा। एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, तकरीबन 17 से 18 घाट ऐसे हैं जहां पे स्नान जी। करने लायक पानी नहीं है। सर उसके बारे में बात करेंगे अभी। मणिकर्णिका घाट है, वहां पर भी हालत खराब है। वो बाकी जो 2 या 3 घाट है वहां पर भी बहुत बहुत हालत खराब हो रही है। लेकिन यहां पर आपसे एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूं। चंचल कुमार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। जी, आपने एक बात कही थी कि गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर्स आकर के उन्होंने उस जगह को मोनोपोलाइज कर लिया है। उसके बारे में जरा बताएंगे सर प्लीज। ये बात मैं आपको बताऊं, ये तो बात मैंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे बताया कि चंचल भाई 12-12 15, मैं भी गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा भी, जी। 12-12 15-15 हजार रुपए के कॉटेज मिल रहे हैं, वो भी एडवांस बुकिंग। वो भी आप सोचो आप कि जहां महाकुंभ में सब लोग सामान्य तरीके से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जी। सब लोग एक जगह स्नान करने के लिए महाकुंभ में जाते थे। लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने क्या कर दिया है कि तुम भैया पैसे वाले हो, अमीर हो, उद्योगपति हो, तो तुम यहां स्नान करोगे। तुम अगर पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक, तुम यहां स्नान करोगे। तुम मुसलमान हो तो इलाहाबाद प्रयागराज छोड़ के बाहर चले जाना, दिखना भी मत। अरे भैया, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? जी। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? ये जो बंटवारा करने वाले लोग हैं, ये बंटवारे, नफरत की राजनीति पैदा करने वाले हैं, इनको पूरी तरीके से जनता जान चुकी है। चंचल मैं आपको कुमार और जी, बता दूं, 1 आने वाले point- समय में 1 इनका point- पूरी तरीके से भंडाफोड़ करेंगे। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट हो रहा है महाकुंभ के वजह से। महाकुंभ इज जनरेटिंग 1.5 लाख करोड़। तो उसमें बहुत सारे विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, यूएस के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पूरे भगवा वस्त्र पहन के यहां पर महाकुंभ अटेंड करने आए। तो क्या उनको केटर करना नहीं चाहिए? वो रहेंगे क्या? आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम है। अब बिजनेस जनरेट हो रहा 1.5 लाख करोड़ मोदी साहब ने कहा, तो क्या ये जनरेशन ऑफ अरे इनकम, मोदी साहब जनरेशन तो ऑफ न जाने बिजनेस? क्या क्या बोलते रहते हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपने कहा कि बिजनेस जनरेट की बात कर रहे हैं। वहीं बगल में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरा बचपन वहीं पे बीता है सर। नैनी में कम से कम 85 कंपनियां थी, आज के समय में केवल 1-2 कंपनियां बची हैं। मोदी जी 18-18 घंटे मेहनत करके टीएसएल से लेके आईटीआई से लेके सारी कंपनियां बंद कर रहे हैं, बंद हो गई, कई बंद, ताले बंद हो गए। और आप कह रहे हो कि बिजनेस जनरेट की बात करो, वहां के आसपास लोगों से पूछ लीजिए आप कि आज हालात क्या है, बीजेपी क्यों हार रही है। चाहे वो कुंभ की नगरी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वाराणसी में मोदी जी हारते हारते बचे हैं। तो बीजेपी के जो धर्म के नाम पे धंधा करने का, जो धर्म के नाम पे वोट लेने का, ये जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। और इसीलिए इनको जितने भी धार्मिक नगरी है, चाहे चित्रकूट हो, बांदा हो, चाहे आपका ये नेमिसारण हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी, आपका ये जितने भी आपको स्थान मिलेंगे,
धर्म से जुड़े हुए, वहां सब बीजेपी हार रही है, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। उसका बस एक कारण है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इनके धार्मिक एजेंडे को सुनते सुनते। वो कह रही मेरे रोजगार की बात करो, वो कह रही है शिक्षा की बात करो, वो कह रही है हमारे बच्चों की फीस नहीं जमा पर उसके बारे में बात करो, वो कह रही चिकित्सा में ऐसा कोई दिन नहीं है सर जो आप चले जाओ लोहिया में, पीजीआई में, केजीएमसी में, लखनऊ में बैठा हूं, जो सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। आप प्रयागराज चले जाओ, मेडिकल के क्षेत्र में बस से बदतर हालात है सर। आप क्या बात करोगे? एक कहीं 50 बेड का भी मोदी जी ने अस्पताल बनाया हो या योगी जी ने चंचल 10 कुमार सालों जी। में इलाहाबाद में, मुझे बता दो आप। आपकी बात आ गई, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अभी लेट्स टेक द काउंटर व्यू फ्रॉम अली दारूवाला साहब। अली दारूवाला साहब, ये क्या बात होती है कि अयोध्या में भी यही क्रिटिसिज्म लगा आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि यू गॉट दीज कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम गुजरात, दे आर मोनोपोलाइजिंग द एंटायर थिंग। सर, उत्तर प्रदेश में कोई लोग नहीं है क्या काम करने के लिए? व्हाई डू हैव टू गेट पीपल इन फ्रॉम गुजरात ऑल द टाइम? अली दारूवाला साहब, ये तो बताइए, अयोध्या में भी सड़क बनानी है गुजरात, मंदिर बनाना है वो भी गुजरात, आर्किटेक्ट वो भी गुजरात। सर, स्थानीय लोग हैं, उनका भी तो हक बनता है ना। अब आप बोले दारूवाला साहब, प्लीज गो अहेड सर। Exactly. Answering to this first question, what you said, क्या contractors गुजरात से आए? जी, अयोध्या please. मंदिर के contract गुजरात से. I would not be aware of this. Who has awarded the contract? Who has won the contract? But what I understand, Honorable, the राम मंदिर जो है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसका एक इंडिपेंडेंट शिलान्यास है, उसके लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, क्या करना है, वो एक इंडिपेंडेंट, इफ आई एम नॉट, आई मे बी रॉन्ग ओवर हियर, चंचल जी, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, हो सकता मैं गलत हूँ, मगर इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है ये मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू द महाकुंभ, if I'm not mistaken, even about the Mahakumbh, I have been told that it happens once in 144 years. इसके पहले जो कह रहे थे कि 1999 में जो 14 साल पहले हुआ था, जब इनका शासन था, इन्होंने कितना अच्छा किया, बुरा किया, मैं यहाँ पे टिप्पणी करने या कि आपको नाम रखने के लिए नहीं बैठा हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ क्या जब हमारे मुसलमानों में हज की जब यात्रा होती है तो द मैक्सिमम नंबर जो बकरी ईद के रोज जो मैक्सिमम नंबर जो पहुंचता है वो 65 लाख लोग वहां पे एक दिन में एक साथ तवाफ करते हैं। उसकी तैयारी के लिए पूरा सऊदी अरब गवर्नमेंट, पूरा किंगडम लग जाता है, हजारों लोग काम करते हैं और वहां पर ये नियोजन के लिए पूरी सल्तनत लग जाती है और ये आज ये लोग 900 साल से ये करते आ रहे हैं। ये सरकार, नई सरकार जो 10 साल पहले बनी है, अभी 11वें साल में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% राइट है, वहाँ पे लाइट जो आपको कोई न्यूज़ आया है वो गलत है, आप झूठ कह रहे, मैं ये आपसे नहीं कहता हूँ। हो सकता कुछ शॉर्ट कमिंग्स रहेंगे, हमारे लिए ये नया है, मगर हमारे लिए ये प्राधान्य है कि किसकी जीव हानि नहीं होना चाहिए, स्टैम्पीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 65 लाख लोगों के अंदर भी वहां पर अंगार लगी है, स्टैम्पीड हुआ है। मैं तो ईश्वर चरण यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी यही प्रार्थना करो, जो हमारे भाई बंधु वहां पर है सब सुरक्षित जाए, महफूज वापस आए। और गवर्नमेंट में अगर कोई खामी है, आपने जो हाईलाइट किया इसको बिल्कुल, चंचल जी एक सेकंड, अली दारूवाला साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात, आप जो बोल रहे हैं दुरुस्त है जी जी दारूवाला साहब, लेकिन जो मेन पॉइंट चंचल कुमार जी ने जो बताया, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, आप बोलिए, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट बाउंड बाय टाइम कंस्ट्रेंट्स, नॉट ऑन दिस चैनल। अभी जो चंचल कुमार जी ने बताया कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट में टर्न कर दिया गया है, ये पहली बार देखने को मिला है। जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया कि इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, क्या है वो कटआउट्स ऑफ मोदी जी और योगी जी, 3D cutouts of Modi ji and Yogi ji, and popular, which are selfie points. Naturally, people are going and taking selfies. Popular, the most popular. But is that something which is right on a religious event? That's what I want to know. महाकुंभ है सर, उसमें मोदी जी और योगी जी, तो फिर बाकी सबका भी लगाना चाहिए, जितने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी लगाइए, बाकी जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनके भी लगाइए, जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके भी लगाइए ना सर। सिर्फ why only Modi ji and Yogi ji? That just because they are in power right now? Don't you think that's, I mean, there's a question mark there. It's a spiritual event, sir. महाकुंभ जितना बड़ा आध्यात्मिक क्षण कोई नहीं है
भारत के लिए, हर भारतीय के लिए, और अब तो सारी दुनिया के लिए। आप देखिए ना, दुनिया से कितने लोग आ रहे हैं वहां पे, तो वो आकर के सिर्फ देखेंगे योगी जी और मोदी जी को। अब आप बोलिए अली दारूवाला साहब प्लीज। No, I totally agree. Maybe it's a state-sponsored funding or state-funded it is. Maybe that must be the It is. protocol that It the is. Honorable Prime Minister, the Chief Minister, and the subsequent ministers, they have put. How big, how large it is, I'm not aware. I would not be able to comment. Yeah, as you said, this can be avoided. We do not need publicity. We are already in power. We are not moving out anywhere for next five and a half years. So we do not need to take publicity from every small Sir, thing. you need to in Yeah. UP election that you. संतों का जहां तक मुझे नॉलेज है, संतों का भी वहां पर संतों का भी बड़े बड़े ये स्टैचूज वगैरह बनाए हैं फॉर द पीपल। ना आई वांट टू नो, चंचल कुमार जी ने, दारूवाला साहब ये कहा कि आप मुसलमानों को एलिनेट कर रहे हो, where UP is concerned, where Mahakumbh is concerned, but आज ही आपने सऊदी की बात किया, मोदी साहब ने एक स्पेशल एग्रीमेंट हैज साइंड विद ऑन हज with Saudi Arabian government for the benefit of the people from India traveling for Hajj। यानी स्पेशल ट्रीटमेंट जिस प्रकार से उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका हॉस्पिटैलिटी के लिए और हर चीज के लिए जो आपने बात किया था, तो क्या ये एलिनेशन है? इज इट एलिनेशन दारूवाला साहब? बिल्कुल, ये एलिगेशन कैसा है चंचल जी? अगर आप सच्ची में यहाँ पे मुसलमानों के रहबर है, उनकी खैर का चाहते हैं, आपको ये बात मालूम है, एक 40 दिन के हज की यात्रा में 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आता है। यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे हज यात्रियों को सरकार यहाँ पे अनुदान देती है, उन्होंने केवल 1 या 1.5 लाख भरना है और बाकी का पूरा खर्चा ये यहाँ पर शासन करती है। अगर बीजेपी शासन मुसलमानों के खिलाफ होती तो पहले दिन सत्ता में आती तो ये मुसलमानों को जो हज यात्रा को जाने के लिए जो 5-5, 6-6 लाख रुपए एक एक यात्री के पीछे ये सरकार देती है, ये सरकार ने बंद नहीं किया, बल्कि जो हज ऑपरेटर्स है उसका स्क्रीनिंग किया, फेक लोगों को, जो दुर्बल लोग हैं, जो लोगों का पैसा लेके ऐड के भाग जाते, ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया और ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, ऑनलाइन किया और सारे हज ऑपरेटर्स को उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट किया और इनके माध्यम से जो जाने वाले हजी है उनको पूरी की पूरी व्यवस्था मिले, अच्छे तरीके से मिले। और वहाँ पे जो हज में खेलने लगते, जो मैं आँख से देखकर आया, कुंभ मेला में आपने जो जो कहा चंचल जी, मैंने उसको डिबेट में नहीं लिया। मे भी आप बेशक आप उधर ही छोटे से बड़े हो गए, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, मगर हज को मैं जाकर आया हूँ, मैं वहाँ पर देखा हूँ जो इंतजाम वहाँ पे भारतीयों का किया जाता, उन्हें लगने वाला जो खाना लगता, जो इंडियन लोगों का खुराक है, खास वैसे ही पकवान वहाँ पे बन के सरकार इंडियंस को देती है। ये पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर अच्छे रिलेशन, सर मैंने जो सवाल किए थे सर, आप चीजों को आप अलग पहुंचा रहे हो। मैंने सवाल ये किए थे कि जिस तरीके से लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को बहिष्कार करने की बात करी वहां पर कुंभ में, आप सोचो क्या सर ये गलत नहीं है? और क्या उन साधुओं या संतों या बड़े बीजेपी के नेताओं के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, या ये कह दिया गया कि नहीं मुसलमान समाज का लोग आदमी वहां पे कोई कुछ कर नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता, उसको वहां पे हम अगर चला जाएगा तो हमारा हिंदू धर्म का जो है ये हमारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इस तरीके के आरोप जो लगाए जाते हैं सर, ये बांटने वाले आरोप है सर, वो बीजेपी के लोगों के द्वारा प्रचार किए जाते हैं। मैं चंद पंक्तियां बता दूं, आप सोचो क्या उन बातों को धक्का नहीं लगेगा? जो मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपत राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा रस खान सुनाई देता है, औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, हम समाजवादियों को तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। और मैं बता दूं, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, जो बांटने वाली राजनीति, जो हमारे असंख्य पूर्वजों ने, असंख्य लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानियां देकर के इस देश की जो है गंगा जमुनी तहजीब को बनाने का काम किया, आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें प्राउड है। आप बताओ ये बीजेपी के लोग क्या उसको बिगाड़ने में नहीं लगे हुए? इनके संत कभी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? क्या उन्हें संविधान की तनिक भी भनक है, या संविधान के बारे में तनिक भी वो नॉलेज रखते हैं? और यही बीजेपी के नेता मंचों से खड़े होकर के उनका महिमामंडन करते हैं,
उनको जो है बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बताते हैं, तो क्या गलत नहीं है सर? ये बांटने की बात नहीं है? चंचल कुमार जी, लेकिन आपको मैं आज बता दूं सर, उसी प्रयागराज में सर 10 सेकंड, जी बोलिए बोलिए उसी सर, बोलिए बोलिए। प्रयागराज में आप चेक करा लो, हमारे लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में प्रयागराज तैयारी करने स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए जाना जाता है सर। और प्रयागराज में जो है बता दूं आपको, लाखों की संख्या में लोगों ने आईएएस पीसीएस दिए हैं, लेकिन आज हालत क्या कर दी है मोदी जी ने, योगी जी ने? आज उन छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, बट बूट बेल्ट से रौंदा जाता है उनके अधिकारों को, उनको पीटा जाता है सर, सारे पेपर लीक होते हैं। एसएससी हम लोग जब पढ़ते थे, हर साल एसएससी की परीक्षाएं 2 बार होती थी सर। अगर आप 10 साल में चेक कर लेना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक कर लेना, 10 सालों में 2-3 बार ही परीक्षाएं एसएससी की नहीं हो पाई होंगी। रेलवे में भर्तियां चलती रहती थी, रेलवे को खत्म करने की पूरी योजना लगा दी गई है, प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। मैं भी वंदे भारत से यात्रा कर रहा था, आप सोचो 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है सर। आप बताओ क्या महाकुंभ देखने जा पाएगा वो 10,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति? चंचल तो कुमार जी, चश्मा आप लगाते हो आप चंचल करना, ये अनुभक्ति वाला, ये बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है सर। या पार्टी से ऊपर उठ के अगर आप बात करोगे हमारी जो है क्या नाम आस्था को, तो आस्था सर हमारा पर्सनल विषय है, वो हम मैं पर डे हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ के सर घर से बाहर निकलता हूं जी। चंचल और कुमार हमारे जी, घर गाय हैं। चंचल इन कुमार जी, भाजपाइयों से पूछो कितनी गाय इनके घर हैं। और सुनो सर, 10 सेकंड में सर, 10 सेकंड में सुनिए, 10 सेकंड प्लीज समय दे दीजिए। आपको बताना चाहता हूं, दादरी में एक मुस्लिम समाज के फ्रिज में 1 किलो मीट मिल जाता है, वो भी बाद में चेक हुआ तो जो है गाय का मीट नहीं मिला। और उसी दादरी में 180 टन पूरन जोशी के घर, उसे कोल्ड स्टोर में मांस मिलती है गाय का, वो उसको तो महिमा मंडन किया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो? आप कैसा देश बनाना चाहते हो? 1 किलो मीट वाले की हत्या कर देते हो, और वो 180 टन वाला बीजेपी का भाजपाई दंगाई फ्रॉड चंचल कुमार जी, चंचल कुमार जी, बीजेपी के लोग आपने फिर जैसे बीजेपी का आरोप है वही तुष्टिकरण का राजनीति, आपने मौलाना शहाबुद्दीन के बारे में एक सेंटेंस नहीं बोला। आपने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव जी संभल गए, और ये हिंदू पलायन के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। इंडिया अलायंस का कल ही फर्स्ट ईयर ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ना इंडिया अलायंस ना कांग्रेस कोई लीडर्स वहां पर गए नहीं, तो क्या ये तुष्टिकरण का राजनीति नहीं? आप यहाँ पर जो मेजॉरिटी के बात करने का हमेशा छोड़ देते हो, भूल जाते हो। महाकुंभ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कोई भी हो, हमको कोई इनविटेशन दे के बुलाएगा? आप मुझे बताओ, आप कहीं को जाना होगा, आपको धार्मिक यात्रा करनी होगी, कोई आपको इनविटेशन देगा? ये नई परिपाटी बीजेपी के लोग पैदा कर रहे हैं, और उसमें अपने फोटो छपवा करके केवल अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे सर, वहां अभी हमारे एंकर साथी ने कहा कि आप वहां पे मोदी और योगी जी का फोटो किस बात पे लगा रखे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ये पहले कौन सी नहीं हुआ नफरत सर पैदा कभी। करना चाहते हो आप? ये पहले कभी नहीं हुआ मगर है। संतों का भी स्टैचू है, पूरे भरपूर संतों का स्टैचू है लेकिन पूरे लेकिन लेकिन महाकुंभ प्रदीप में। जी, अरे सर, किसी क्या बात पॉलिटिशियन कर का रहे हो? कभी नहीं लगा ऐसा। अब अगली बार जब कुंभ होगा, चंचल कुमार जी और अली दारूवाला साहब जरा ध्यान से सुनने जो मैं बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाए उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी अभी रुझान जो आ रहे हैं, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी काम कर रही है पीडीए को लेकर के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के, तो क्या अगली बार, मतलब आपने तो उनको खुली इजाजत दे दी ना अखिलेश यादव जी को कि अपना भी पुतला लगाएं इतना बड़ा वहां पे, उसमें क्या है? तो मतलब ये क्या हो रहा है? वेरी फ्रैंकली, एक किसी चीज की एक महिमा होती है, मर्यादा होती है, मुझे लगता है कि उसको रखना चाहिए वेरी फ्रैंकली। लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं चंचल कुमार जी, अभी भी क्या हो रहा है कि एकदम दोबारा ये शुरू हो गया है, एंड देन आई विल गो टू अली दारूवाला साहब फॉर हिज कमेंट, कि दोबारा अभी बीच में बंद हो गया था, चुनाव के बाद क्या है ये थम गया था, अभी दोबारा कोई स्वामी जी हैं, कोई और है, बोलो मुसलमानों को यहां से भगाओ, कोई अपने आप को शंकराचार्य कहता है। जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं पूरे देश में, देयर आर ओनली 4 शंकराचार्यस। बाकी सब लोग जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, आई थिंक देयर शुड बी अ लॉ अगेंस्ट इट, उसके कानूनन उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे मुसलमानों को भगाओ यहां से। तो वो रिपोर्टर थी, एंकर जो थी, उन्होंने पूछा भाई 22-23 करोड़ हैं, तो क्या हो गया, निकालिए। और वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, अभी बहुत उनको महत्व दिया जा रहा है कुंभ में, क्या नाम लूं मैं उनका। उसके अलावा हमारे यहाँ के एक मंत्री हैं, बड़े यंग आदमी हैं, बहुत अच्छे, मुझे तो अंकल बुलाया करते थे, नारायण राणे जी के सुपुत्र हैं, नितेश राणे। वो कहते हैं ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्लाज, ऐसा बोला उन्होंने, भाषण में बोला है सर। और साथ में ये भी कहा है कि स्टेट ऑफ केरला इज मिनी पाकिस्तान,
तो ये क्या चल रहा है, ये किसकी तैयारी हो रही है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो गए, जो मेन चुनाव होने वाले थे वो भी हो गए, तो अभी किस चीज की तैयारी चल रही है? चंचल कुमार जी, आपके मुताबिक। फिर दारूवाला साहब से मैं लूंगा ये कमेंट। जी बोलिए। मैंने कहा कि बीजेपी के लोग अंग्रेजों के छेले चपाटे हैं, अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के साथ जासूसी करने, इनका इतिहास पढ़ा जाए, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग हैं। ये उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, बांटो और राज करो, ये उसी विचारधारा पे काम करो, उनका कोई एजेंडा नहीं है। आप बताओ, नीतीश राणे आपने जो बयान दिया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। क्या बीजेपी ने लोगों ने कहीं कार्रवाई करी? नहीं कार्रवाई करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे सर। हो सकता है भविष्य का मुख्यमंत्री बना दे उसे। मैं बता दूं, जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है सर। आज के समय में जो जितना बड़ा दंगाई, जो बीजेपी के नेता बैठे होंगे, उनसे बता दो कि कुछ गलत बयानबाजी करना शुरू कर दे, दंगा भड़का दे, अगली बार मंत्री बन जाएंगे ये। मैं बता दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और लेट्स गो टू अली दारूवाला साहब एंड आस्क हिम। दारूवाला साहब, एक उदाहरण नहीं सर, आपको देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में दया शंकर सिंह बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के कितनी अभद्र टिप्पणी करी थी उन्होंने जी, करी थी। और बाद में उनको निकाला गया, बाद में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और आज भी करी है सर, अभी 4 दिन पहले विदुरी साहब ने करी है प्रियंका गांधी जी को लेकर के, उसमें क्या है? मगर चंचल कुमार जी, क्या इंडिया अलायंस बिखर रहा? बिकॉज शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले ही आरएसएस का बहुत तारीफ किया। बोले सुनिए, आरएसएस के बूथ प्लानिंग बहुत जबरदस्त है और आरएस के जो सिस्टम है उसके वजह से महाराष्ट्र में जबरदस्त स्वीप हो गए। आज उमर अब्दुल्ला मोदी साहब के तारीफ के पुल बांध रहे। बोले मोदी साहब के दिल से हम बहुत करीब आ गए, मोदी साहब के काम से हम बहुत प्रेरित हो गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला कि एक भी ईवीएम का धांधली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ, एक भी बूथ में कोई सेंट्रल फोर्सेस का एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर नहीं था, कोई एक बूथ में कोई धांधली ना सेंटर से ना लोकली हुआ। तो क्या आपका इंडिया अलायंस बिखर रहा है? बिकॉज ईवीएम आपका एक जोड़ने वाली बात ही, ईवीएम खराब है, ईवीएम स्वीप, तो ये सब एक के बाद शरद पवार साहब का आरएसएस का तारीफ करना, तो क्या इंडिया अलायंस बिखर रहा है? चंचल कुमार जी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं बिखरने वाला है। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी सदैव नेशन फर्स्ट, सबसे पहले अगर सेंट्रल में अगर हम बात करें, जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हमारा प्रमुख एजेंडा होता है नेशन फर्स्ट। कैसे इन फिरका परस्ती ताकतों को उखाड़ फेंका जाए, कैसे इन जो पूंजीवादी जो सरकार चल रही है, जो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का संघर्ष सदैव जारी रहेगा। और जो बीजेपी को हराने के लिए आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरी सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए हम समाजवादी लोग बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ में, आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि हम लोगों का मुख्य एजेंडा है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सदैव समाजवादी पार्टी काम करती है। विकास की हम लोग राजनीति करते हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, इसी लखनऊ के अंदर मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को चैलेंज भी करता हूं। इसी लखनऊ के अंदर जो आपको मैं एक एक बताता हूं, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, आप आगे बढ़ोगे, लोहिया का अंकोलॉजी भवन से लेकर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, 200 बेड का मास अस्पताल, आप आगे बढ़ोगे, हमारी आंखों के सामने बना है, पराग का प्लांट, शानी अवध, और आप आगे बढ़ोगे एशिया का स्तर, जनरल मिश्रा पार्क, लोक भवन, मेट्रो का काम, अमौसी से मुंशीपुलिया तक मेट्रो का काम हुआ सर, उसके आगे एक पिलर बाबा नहीं बढ़ा पाए। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, कोई एक काम बता दो लखनऊ राजधानी के अंदर जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो। गोमती रिवर फ्रंट भूल गए, आप गोमती रिवर फ्रंट भूल गए। गोमती रिवर फ्रंट, मैं बता रहा हूं 50 काम सर मैं जुबान पे आ गए सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सब तो हमारे सामने हुआ है सर। हम तो सहारा न्यूज के हेड थे, वी यूज्ड टू हेड सहारा न्यूज, सो वी नो दैट। लखनऊ तो हमारा शहर है सर, आप लखनऊ के बारे में हमें क्या बताएंगे? अली दारूवाला साहब, बीजेपी के लोग बता दें जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास उसका उद्घाटन किया हो, एक कोई काम। सर चंचल कुमार जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। दारूवाला साहब, यहां पर मैं देखिए साहब, ऐसा है, जब सारी दुनिया उद्धव ठाकरे जी को गाली दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, आप अकेले थे जो खड़े होकर के ये बोल रहे थे अली के उद्धव ठाकरे साहब हमारे साथ वापस आएंगे। आपने ये कहा इन स्पाइट द फैक्ट दैट दैट वाज नॉट योर पार्टी लाइन, क्योंकि आप दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, नीतीश राणे साहब, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर। उन्होंने पहले बोला केरला इज ए मिनी पाकिस्तान, अब बोलते हैं ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्लाज। ये does it suit a cabinet minister to say that? And he's still a cabinet minister.
दारूवाला साहब प्लीज बताएं, प्लीज गो अहेड। Exactly. As the official spokesperson for BJP in Maharashtra, what Nitesh Rane ji has been saying, and you know it on record, I have been condemning it. And now I have come to a conclusion, and I can, with total authority, say, because being a BJP spokesperson, apart from that, I'm in working for an organization which is headed by none other than Honorable Indresh Kumar. जी वो क्या कहते हैं, लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं, वो जो वर्ड्स यूज करते हैं, ये तो अपने चैनल के ऊपर हम वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। चंचल जी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। और उन्होंने जो ईवीएम को के बारे में कहा, जो यहाँ पे इज्तिमा हो रहा है हमारे पूना में, जो कल ही खत्म हो गया, वो इज्तिमा के बारे में क्या कहा। आई एम टेलिंग यू, नितेश राणे जी एक बहुत छोटी सोच में सिमट के रह गए। जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और हमारा संघ जो है, वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्या वो मुसलमानों को हमारे भाई से बढ़कर मानते हैं, ना कि कम। ये पार्टी के अंदर मुसलमानों के लिए जो जगह है, और जो आप कह रहे थे ना, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, एट द सेम टाइम आपने ये नहीं सुना, क्या आप ये नहीं कहना चाहते, क्या मोहन भागवत जी ने कहा बेशक ये हिंदू राष्ट्र बगैर मुसलमानों के सहभाग के नहीं बन सकता। तो ये पूरा स्टेटमेंट था चंचल जी। हम लोग जो है उसके अंदर ये भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजना बंद करो, ये भी आपने कहना चाहिए था चंचल जी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, ये बीजेपी की लाइन नहीं है। हमारे सीनियर नेता जिसके बोलने को कोई कीमत होती है, वो ऐसी बात नहीं करते। नीतीश जी क्यों कह रहे, कैसा कह रहे, उनका बोलने के पीछे क्या आक्रोश है, ये हमें नहीं पता, मगर वो हमारी पार्टी लाइन नहीं है। मैं नीतीश जी का, बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, आई एम अ वेरी स्मॉल स्पोक्स पर्सन, बट बीइंग अ मुस्लिम आई कंडेम, और ये नहीं कहना चाहिए। मगर मुसलमान जो जनता है, आज महाराष्ट्र में जो 2-2.5 करोड़ जनता है, वो नीतीश राणे जी के बयान से बिल्कुल उन्हें असर नहीं गिरता, क्योंकि मोदी जी की जो विचारधारा है और जिस लाइन पे ये देश चल रहा है, वो लाइन मुस्लिम को मेन स्ट्रीम लाइन में मेन प्रवाह लेने के व्यू से चलती है। तो आई ऑल्सो टेल यू, लेट अस नॉट ग्लोरीफाई नीतीश राणे जी, एंड आई डू नॉट थिंक व्हेन द टाइम कम्स you will see दारूवाला what the साहब, party दारूवाला has साहब, decided. आप आरएसएस से जुड़े हो, अली दारूवाला साहब, आप आरएसएस से जुड़े हो और कंटिन्यूसली जुड़े हो इन अ बिग वे। जिस प्रकार से शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले उनके सभा में कहा कि आरएसएस का बूथ प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, इससे हमको तारीफ करना चाहिए, और मैं तारीफ करता हूं आरएसएस का बूथ प्लानिंग का। जरा उस पर गौर फरमाएं, क्या पॉइंट था, क्या बूथ प्लानिंग था आपका? क्या महाराष्ट्र में महायुति का महास्वीप जो 236 आउट ऑफ 288, इसमें आरएसएस का बूथ प्लानिंग का बहुत बड़ा खेल है? They played a big role. How do you see that? Can you explain that, दारूवाला साहब? What शरद पवार, because शरद पवार साहब कोई छोटा नेता नहीं है, जब भी वो कहता है कि दूरदृष्टि से कहता है। I will tell you. In the Lok Sabha election, Rajiv sir, Pradeep sir, and you can just check it on records, 14% जो बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स परमानेंट वोटर्स थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग था। आई एम टेलिंग यू, इतने सारे फोन कॉल्स, और ये गफलत में जो हम लोग सो रहे थे कि जो करेगा मोदी करेगा, मोदी की गारंटी, ये जो एक नैरेटिव चला था। वेल, वी डिड दैट शो फॉर 2 years, राजीव सर, अब की बार 400 पार एंड एवरीथिंग, दैट टुक अस ऑन अ रॉन्ग फुट। ये लोग ये समझ के चले थे कि बस मोदी तो जीतने वाला है। मुझे लगा कि मेरा भाई काम कर रहा है, मेरे भाई को लगा कि वो काम कर रहा है, हम लोग सब लोग गफलत में थे। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम, इट वाज शॉकिंग। बीजेपी के नाम मिस हो गए एंड वी वर ओवर कॉन्फिडेंट, और ये ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ स्टेटमेंट्स, राजीव सर, प्रदीप सर, जो हमारे खिलाफ गए, इसके वजह से वी ऑल वोक अप। We did nothing. We went to each and every individual stalwarts, permanent voters. We made sure their name is there in the list. उनका इलेक्शन कार्ड का स्लिप है नहीं है, हर एक आदमी ने उस दिन एक मैंने जिम्मेदारी दी 150 लोगों का, टू मेक श्योर दैट दिस पीपल कम एंड वोट। अगर दोपहर में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 4-5 बजे तक वो नहीं आए,
तो सारी ताकतें हमने हमारे वोटर्स को लाकर वोट करने के पीछे लगाई। यही काम संघ परिवार ने किया और इसके अलावा कोई मैजिक नहीं किया। वी गॉट आवर वोटर्स टू वोट, दैट इज व्हाट द फ्यू Wonderful. हैंडफुल ऑफ वेरी Garwala Sahab, now can I go to Mr. Chanchal Kumar? Because this is a very important point you have raised. Chanchal Kumar साहब, जो अभी दारूवाला साहब ने कहा, मैं आपसे मतलब आपका असली विचार क्या है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक क्या है कि अखिलेश यादव साहब तो एक बार नहीं कितनी बार पहले भी कह चुके हैं कि भले ही मेरी 80 की 80 सीटें आ जाएं उत्तर प्रदेश में, या मैं सारी सीटें जीत जाऊँ असेंबली में, फिर भी मैं चाहूँगा कि वापस हम लोग बैलेट पेपर पर जाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ चंचल कुमार साहब, अगर मान लीजिए बीजेपी को ईवीएम की धांधली करनी होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की धांधली करनी होती, तो लोकसभा में कर लेते। बोल तो रहते 400 पार 400 पार, अरे 350 तो ले आते, ये 240 पे अटक गए। अगर धांधली करनी होती, और यहाँ पे शरद पवार जी कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई, सुप्रिया सुले जी कह रही हैं कि उसका कोई पुरावा अभी तक नहीं आया, यानी कोई प्रमाण नहीं है, खुद बोल रही हैं वो, और उमर अब्दुल्ला साहब खुद बोल रहे हैं कि भैया आपकी 101 सीटें आई हैं ना, कांग्रेस को 101 सीटें आई हैं, और 4.5 लाख वोटों से जब प्रियंका गांधी जी जीतती हैं तो वहां पर कोई ईवीएम में धांधली नहीं है। तो ईवीएम में धांधली का क्या मतलब हुआ? आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार आपने मेहनत करी है, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने खुद देखा जाकर के उत्तर प्रदेश में, जैसे आपके वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है ना उत्तर प्रदेश में, मैंने इतनी मेहनत करते हुए समाजवादियों को पहले करते हुए नहीं देखा। इसीलिए आप लोगों की 7 के 8 सीटें ज्यादा आई बीजेपी से। तो आपको लगता नहीं है सर कि जो मेहनत करता है वही जीतता है? आप बताएं सर चंचल कुमार जी। सर, आपने एक बात जो कही कि बीजेपी 400 पार क्यों नहीं कर लेती अगर ईवीएम से सारा कर सकती थी, तो जैसे मैंने आपसे कहा, अगर बीजेपी अगर ईवीएम से बेईमानी नहीं करती तो 100 पार नहीं करती। मैं आपको बता दूं, 100 पार नहीं करती बीजेपी। और आप ये जान लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मेरे उंगलियों पे सीटों के नाम हैं जिसमें बीजेपी ने बेईमानी करी है, जिसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और जिता दिया गया। सर्टिफिकेट देने में देरी की गई, बेईमानी करने का प्रयास किया गया, और बीजेपी ने किया है, सबके पास साक्ष्य। अभी आपने देखा होगा 9 सीटों पे चुनाव हो रहे थे जो बाई इलेक्शंस हुए हैं। 9 सीटों में आप कल्पना करिए, चाहे हमारी कटहरी की सीट हो, चाहे हमारी फूलपुर की सीट हो, चाहे हमारी कुंदरकी की सीट हो, चाहे हमारी जो है ये वाली सीट हो पास वाली, ये सारी की सारी सीटों पे बीजेपी के लोगों ने बेईमानी करने का काम किया। इवन की कुंदरकी में तो लोगों को वोट डालने नहीं दिया। अब पता चला कि दोनों तरफ से घेर लिया, कहीं उनके लोगों ने खड़े होकर वोटिंग। तो ईवीएम, मैंने बताया कि हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि अगर 80 की 80 सीटें भी आ जाएंगी, और आप तो अभी विश्वास नहीं करेंगे। कारण यह है कि आप पूरी दुनिया में देखो, जिन लोगों ने ईवीएम्स को बनाया वो खुद अपने आप वोट क्यों नहीं कराते जी, इसका जवाब दीजिए से। वो बात और ईवीएम का विरोध केवल अकेले समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। अगर आप 2009 के चुनाव में जाओ सर, आप 2009 के चुनाव में जाओ तो बीजेपी के लोग सबसे पहले विरोध करना शुरू किए। तो क्या ईवीएम तब तो ईवीएम सही थी, तब भी तो विरोध कर रहे थे वो। आज सत्ता में आ गए तो विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा आदरणीय टंडन साहब, आदरणीय टंडन साहब, आदरणीय अडवाणी साहब, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी साहब, नेता बीजेपी के सारे आम इस बात का जिक्र करते थे कि ईवीएम से बेईमानी हो रही है। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जी जीवीएल नरसिम्हा राव भी, आपने बकायदा उन्होंने बयान दिया था, बकायदा उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने तो किताब लिखी। जी, उन्होंने किताब लिख दी बकायदा। आप सोचो। तो सर, मैं वही कहने का चाह रहा हूं कि बीजेपी के लोग जो है, अगर वो बेईमानी नहीं करते तो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। ये जनता का रुझान था, जनता और बीजेपी के लोगों को भी पता था, आरएसएस भी जान रही थी। इसलिए इन्होंने एन केन प्रकरण, जैसे आपने कहा ना कि भाई लोगों को विश्वास भी बना रहे, इसीलिए छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे आपने आदरणीय अब्दुल्ला साहब के बारे में बात करी जी। अब भाई वहां पे उन्होंने बोला कि भाई छोटे स्टेट छोड़ दिया उन्होंने। अब महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव लेट करा दिए। आप पिछली बार याद करो, झारखंड और चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव एक साथ हुए थे। आप बताओ एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए? जो पूरे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो 2 स्टेट एक साथ नहीं चुनाव करा पा रहे हैं। इनकी हालत आप देखो, हरियाणा में आप देख लो, आप ही महाराष्ट्र में आप देख लो। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के परिवार ने बकायदा कहा एक सीट पे कि भाई हमारे लोगों ने, इतने लोग थे और उतने वोट भी नहीं मिले वहां बूथ पे, वो सब वोट लेके आ रहे, वोट नहीं मिले। उसके बाद भी हम एक बात कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम सही है। मैं चाहता हूं अगर बीजेपी इतनी दूध की धुली है
और इतना अगर मोदी जी को कॉन्फिडेंस है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कॉन्फिडेंस है, तो आ जाए आज ईवीएम को छोड़ करके आ जाए मैदान में, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंचल जी, डेवलपमेंट की बात किया आपने, आप कह रहे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, मगर बीजेपी का कहना है कि आपके राज में यानी समाजवादी के राज में आइडेंटिटी ये था कि रामपुरी चक्कू और कट्टा बनाने वाला स्टेट है। योगी जी ने आके ट्रांसफॉर्म कर दिया। योगी ने जो काशी में काम किया, काशी में जो इको स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक लहर हो गया, हजारों करोड़ का जो कमर्शियल वैल्यू वहां पर बढ़ गया, बिजनेस वहां ट्रांजैक्शंस हो गए। अयोध्या में वही हाल हुआ, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गए अयोध्या के वजह से। उन्होंने कहा कि अभी जो नया चीज लेके है, वुमेन सिक्योरिटी हो, टोटल सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड किया, लोग में कॉन्फिडेंस है कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर टोटल कंट्रोल में है, वो सिक्योरिटी एंगल। और अब जो योगी जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या सफलता का आप नहीं कैलकुलेटेड स्टेप नहीं दे रहे कि बिजनेस को भी डेवलप करे, पूरे डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बना देगा और टोटल उसका स्टेट गारंटी लेगा सेल। तो हाउ डू यू सी दैट? आप चंचल कुमार जी इस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले आपने सवाल किया कि अयोध्या से लेके वाराणसी से लेके डेवलप करने का काम किया। काशी में मैं आपको बता दूं सर, काशी में जो हमारे मछुआरा समाज के लोग थे, जिनका एक पारंपरिक जो व्यवसाय था मछली पालन वाला, मछली का जो पकड़ने वाला, उस पे वहां पे उन लोगों को भगा दिया गया और गुजरात की बोट्स आ गई, गुजरात की बोट्स आ गई और गुजरात के स्टीमर्स आ गए। वहां पे जो जो बेचारे मछली पकड़ने वाले लोग थे, जो नौकायान कराते थे, लोगों को घुमाते थे, उनका एक व्यवसाय था, एक रोजगार था, वो खत्म कर दिया गया। उनको मार दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, भगा दिया गया। और अयोध्या आ जाइए आप, अयोध्या में आपने देखा होगा जिस तरीके से हजारों हजार साल से लोग रह रहे थे, जिनके सैकड़ों साल से घर बने हुए थे, सैकड़ों साल से व्यवस्थाएं थी, उन सबको तोड़ करके उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया और उनको बट बूट बेल्ट से रौंदने का काम किया गया। इसलिए अयोध्या के लोगों को हराने का काम किया। काशी में मोदी जी जहां 7 लाख 8 लाख से जीतने का दम भर रहे थे, वहां पे किसी तरीके से जीत पाए। वो कैसे जीत पाए आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तीसरा आपने सवाल किया कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। सर बता दूं, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है सर, पुलिस कस्टडी में डेथ में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा एनएचआरसी के नोटिस किस प्रदेश को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस सरकार में सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्ण जो है न्याय मिलता है, पक्षपातपूर्ण तरीके से लोगों को पीटा जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी के विधायक, माननीय विधायक को मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लतियाता है। लतियाने के बाद सर आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो बेचारा दर दर भटकता रहा विधायक, 8 दिन तक अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाया, 8 दिन तक सर। उसके बाद 8 दिन एफआईआर न लिखवाने के बाद बेचारा फिर वो विधायक अभी सत्र चालू जब हुआ है, तो चंचल कुमार सत्र में नहीं गया भाग लेने के लिए। उसने एक बात का जिक्र किया, मेरी बात पूरी बात आ जाने दिए। चंचल कुमार जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार समाजवादियों की सरकार बनने वाली है, इसका मतलब ये हुआ अखिलेश जी मैं सर बता रहा हूं, पूरी बात आ जानी सर। पिछड़े समाज का होने की वजह से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या उत्तर प्रदेश के? 100% उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब मौका मिले। मैं आपको बताऊं एक बात, कितनी सीटें आएंगी इस बार? नहीं 10 सेकंड सर, मेरी बात आ जाती है। मैं आपको बताऊं, विधायक बेचारा शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाया, वो कहा मैं किस मुंह से जाऊंगा। दूसरा आपने कहा कि पुलिस की व्यवस्था को लेकर के आपको बता दूं, वुमेन पावर लाइन 1090 डायल 100 हमारे गांव में, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं सर, कोई जो प्रभुत्व वाला व्यक्ति अगर किसी ठेले खुमचे रेवड़ी वाले को पीट देता था, वो बेचारा डर किनारे थाने नहीं पहुंच पाता था। आदरणीय नेता, हमारे महबूब नेता ने 100 नंबर लेके आए, आज उसके हाथ में ताकत दी, आज वो 100 नंबर फोन करता है पुलिस। तो डायल 100 तो अभी भी चल रहा है कि बंद हो गया है? जी डायल 100 अभी भी है कि बंद हो गया है? अब मोदी जी को नाम बदलने की आदत है, योगी जी को तो नाम बदलते रहते हैं। 112 कर दिया उन्होंने, बन के रह गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। चंचल जी, वो पॉलिसी किस प्रकार से चल रहा है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात मैं बता दूं आपको। हाँ। आज के समय में एक कोई जिला बता दे बीजेपी के लोग, जहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का इन्होंने जो है उसको वहां पे पूरा पालन करा के बताया हो। आपको याद होगा कन्नौज में हमारी सरकार में मंडियां बननी थी बगल में, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। योगी जी के हाथ में विनाश की रेखाएं हैं सर, विकास की रेखाएं नहीं है। मैंने कहा ना कि लखनऊ राजधानी में बैठा हूं, कहीं 50 बेड का अस्पताल इन भाजपाइयों ने बनाया हो, मुझे बता दो आप। नहीं, इनके पास कोई जवाब मिलता है। Right, so let's go across to Ali Daruwala sahab, who has been listening very closely.
Darwala Saab, you've raised your hand, you wanted to say something. Please go ahead, sir. Yeah, I'll tell you one thing. I'll just be concluding this debate because it's becoming a very localized UP ka koi subjects. I'm not a local UPI, but for your information, I was in Lucknow last week. You were? And Okay, I was lovely. talking to people. I was talking to people in Lucknow. They all were so happy. They all were so happy. Just give me one sec. Just give me one sec. I'm in the debate. I'll call you back. The people in Lucknow were so happy as I was talking. You know, your habit since you're a reporter, Pradeep sir is a reporter. We got the grassroots information. What he's saying, I do not deny. Akhilesh ji made so many monuments. He spent crores of rupees, and all good luck to him. And no two ways about it. He is saying that Yogi ji has done nothing. But to add to what he said, Yogi ji has given glory to Uttar Pradesh, given glory to Lucknow. He has bought law and order. It was the land of the lawless, it was the land of the organized crime, and what was happening in UP, nevertheless, development wise, infrastructure wise, metro wise, as he said, 50 चीज में आपको गिना सकता हूँ. Hats off to you. मैं हाथ जोड़ के अखिलेश जी का और उनकी पार्टी का और आप विधायकों का धन्यवाद करता हूँ. आपने इतना अच्छा स्टेट बनाया, मगर आप वहाँ पे लॉ और ऑर्डर नहीं ला सकते. वहाँ पे माफिया अरे राज कुछ चलता भी है. लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर दारूवाला साहब, लॉ सर, एंड बोलने ऑर्डर दीजिए ना उनको, चंचल कुमार जी. मैंने कहा केवल आप टीवी में बैठ के बोल रहे हो, आ जाओ उत्तर प्रदेश में. सर, किसी मैं अभी लखनऊ मुख्यमंत्री से के आया हूँ. सजाती व्यक्ति मैं पीट रहे हैं अभी- लोगों को. मैं अभी लखनऊ से आया हूँ. आपके गलौटी कबाब खाकर आया हूँ. चंचल जी बेस मुझे खत्म कर दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है. 8:15 हो गए. ड्यू रिस्पेक्ट अखिलेश जी को, नेताजी को ड्यू रिस्पेक्ट, मगर यूपी के अंदर जो हमारे योगी जी ने काम किया, लोग रास्ते पे, गरीब लोग उसकी सराहना कर रहे. उबर और ओला चल रही है. और जो मंच के काम से मैं गया था, वहां पे हॉल में मुसलमानों की एक सम्मेलन में बैठने के लिए जगह नहीं थी. अगर इतना लॉलेस है, मुसलमान इतने डरे हुए हैं, इतने भयके हुए हैं, और इतना आप लोग अच्छा काम कर रहे, तो हमारे संघ के एक कार्यक्रम में इतने सारे मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं? सर, पैसा देके नहीं लाया उनको. अब अगर आप स्टार्ट ऑफ लोग देखेंगे ना सर, वो पैसे देके आने वाले लोग नहीं थे. चंचल जी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके काम की सराहना कर रहा हूँ. मैं तो आपको यहाँ पे आपके साथ में डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपको भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ, क्या नेताजी से भले मानुस, भले आदमी योगी जी है. लॉन्ग विजन है. आपने कहा ना मोदी जी के हाथ की रेशा में ने क्या विनाश काल है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए सर. यहाँ पे आज इंडिया के बारे में सारा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है. मुस्लिम कंट्रीज बुला के हाईएस्ट ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे रहे. योगी जी इज स्टैंडिंग इन. अरे साहब, ट्रंप ने बुलाया नहीं साहब, नाराज हैं. ऑस्ट्रेलिया ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों को बैन कर दिया कि आप हमारे राज्य में आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई नहीं कर सकते हो. आपको इंटरनेशनल आप मोदी जी की दुर्दशा ये हो गई है कि मलेशिया से लेके, नेपाल से लेके, पाकिस्तान से लेके सारे देश हमें आंख दिखा रहे हैं. I tell you what we'll do. और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है. अली दारूवाला साहब, चंचल कुमार साहब. आप कह रहे हैं डंका बज रहा है. चंचल कनाडा कुमार के जी बारे में तो आप भले बात ही और नहीं कर रहे अली सर. दारूवाला वहाँ पे साहब, क्या हो रहा है आपको मालूम जरा है सर? जरा कनाडा की तो महाकुंभ बात को नहीं आगे बढ़ने कर दीजिए. मैंने कहा योगी जी के हाथ में विनाश की रेखाएं हैं. वो केवल लोगों का घर गिराते हैं, लोगों को बुलडोजर चलाते हैं. अभी आपने देखा होगा कन्नौज में जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है, बनने से पहले गिर गया. आप बताओ विनाश की रेखाएं हैं कि नहीं है? आप बताओ. चंचल कुमार जी और अली दारूवाला साहब, होते ही नहीं, ऐसा नहीं मैंने होता कहा है. मौसी से मुंशी पुलिया तक एक मेट्रो बनी, उसके अलावा एक भी पिलर अब आगे बाबा नहीं बढ़ा पाए. नहीं, मैंने एक कहा ना पिलर, सर. आपको. मैं तो अभी कह रहा आप हूँ कबाब नेताजी खा के गए होंगे को तो सलाम मेट्रो से किया. नहीं गए मैंने होंगे. नेताजी को सलाम किया. आप सुने नहीं मेरी बात को. अरे आपने सर, तो बहुत मैं वही अच्छा कह रहा हूँ ना विकास कि एक काम पिलर किया. आगे तो बढ़ाते ना, तो विकास विनाश की के रेखाएं है कि काम नहीं को है? आपके मेट्रो में हम घूमने के यूपी लिए के लोग महिला ही नहीं सोच रहे आती थे थी. कि जो आपके आदरणीय यूपी अखिलेश के यादव लोग जी ने 6 काम के बाद किए में थे, उसको चंचल आगे जी बढ़ाने लोग का बाहर काम नहीं करेंगे आते योगी थे. जी. वहाँ पे आपने बनाई हुई चीजों को Gentlemen, I think this आनंद debate is लुटने going के लिए nowhere. लोग Thank you नहीं very आते थे, much. सर. वो दारूवाला योगी जी साहब, की बहुत वजह बहुत से लोग शुक्रिया आ रहे हैं, आपका. सर. चंचल कुमार जी, We'll have बहुत to- बहुत धन्यवाद आपका. आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े. अली दारूवाला साहब पूना से जुड़े. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड चंचल कुमार जी, आप पहली बार शो में आए, इसके लिए आपका और भी धन्यवाद. और आपको लोहड़ी की, बिहू की,
पोंगल की बहुत 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 शुभकामनाएं, और कल मकर संक्रांत है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Well, you can't expect the Samajwadi Party to praise the arrangements made by the BJP. And I would like to put on record what's happened to our Congress friends. कांग्रेस से कोई आना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता है, वो कहते हैं उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं फिलहाल। एटलीस्ट दे कैन टॉक अबाउट जय, जो उनके कैंपेन है, जय बापू, जय अंबेडकर, जय संविधान। नहीं, जय भीम बोलते हैं सर। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो एटलीस्ट वो जो आपने कैंपेन शुरू करने के बाद किया, तो उस पर चर्चा करें, उस पर तो चर्चा कीजिए। इतना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी था, अमित शाह जी ने जो अंबेडकर के बारे में कहा था, It's been lost, it's gone. यू लॉस्ट। आई मीन कहाँ है कैंपेन, कौन जा रहा है? या बीजेपी ने ऑलरेडी हर घर चलो का कैंपेन चला दिया, हर घर जा जाके मेंबरशिप बना रहा है। जी। And one fine day Congress will wake up and they'll find that There are more, 1 crore more votes. 1 करोड़ वोट और आ गए। कहाँ से आ फिर गए? बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ने धांधली करी है। अरे बाप रे बाप। अभी आप घर में बैठे हो और ये लोग जाके घर घर जाके वोटर्स को एनरोल कर रहे हैं। However, I really would like to know exactly what's happening in the Mahakumbh, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अपने पास आ रही हैं, चलिए जनाब हमारे चंचल कुमार साहब बोल रहे थे कि भाई आयोजन में इतनी कमियां हैं, ये है, वो है, लेकिन प्रदीप जी जो रिपोर्ट मुझको आ रही है उसके मुताबिक तो इट इज पॉसिबली द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड महाकुंभ सो फार। अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन हुई महाकुंभ की वो बहुत जबरदस्त है, ऐसा कहा है उन्होंने। और तो और छोड़िए, हर साल, हर 12 साल में, और अर्धकुंभ में भी, बाय द वे 6 साल का जो कुंभ होता है ना, छोटा वाला जो कुंभ होता है, बिल्कुल। उसमें भी अरे 2 अखाड़ों के बीच में लड़ाई ना हो, कभी ऐसा हो नहीं सकता। पहली बार हुआ ऐसा कि 2 बड़े बड़े अखाड़ों के बीच में युद्ध नहीं हुआ, दंगल नहीं हुआ, द्वंद्व नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो anyway, let's be very clear, the Samajwadi Party is in the opposition, they are not going to miss a single opportunity to run down Yogi Adityanath and the organization of the Mahakumbh. And sir, dignitaries like Mrs. Gates, they are all visiting here, so they are ready to spend, so you need to have Sir, something. Steve Jobs की वाइफ भी आई हैं यहाँ पे। Yes, exactly. तो you need to have something for them to decide रहेंगे का, अगर उनके लिए अच्छे नहीं तो सर आप मुझे बताइए 15,000 की कॉटेज जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनको क्या तकलीफ क्या है? उनको क्या आप मत रहिए, आप वहां पे रहिए जहाँ पे चीपर है। Yes, क्या है ना, हर स्ट्रेटा के लोगों को प्रोवाइड किया। There are more than 6, I think the last I counted there were 6 5-star hotels in Lucknow. सर 6 5-star होटल लखनऊ में बहुत सालों से हैं, तो इसका मतलब वो नहीं होने चाहिए वहां पे। सबको झोपड़े में, आप झोपड़े में रखेंगे सबको, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? मेरी समझ के बाहर। हेलीकॉप्टर सेवा है, just who can afford a helicopter, then go by helicopter. That's right. जो मल्टी बिलियनर्स वहां से आते हैं विदेश से, इंडस्ट्रियलिस्ट है टॉप के, और महाकुंभ में उनके एक आस्था है, they love the spirituality involved where India is concerned, and they are ready to spend. Why shouldn't the state provide them opportunities to take the facilities? प्रदीप जी, why shouldn't the state earn? Yes. सीधी सादी बात है। जो 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, इतने का व्यवसाय होगा 1.5 लाख करोड़ का, मोदी जी ने बात करी है, उसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं दिख रहा, मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है कि दिस विल प्रोबब्ली बी द फर्स्ट महाकुंभ वेयर द गवर्नमेंट विल मेक अ प्रॉफिट। Exactly. You know, instead of spending, because up till now we only used to spend on महाकुंभ। महाकुंभ की वजह से कितने हजारों करोड़ों का स्टेट को लॉस हुआ करता था, मतलब एक्सपेंडिचर हुआ करता था, लॉस तो नहीं कह सकते। इस बार पहली बार होगा, according to one estimate, where the state of Uttar Pradesh is going to make money on the Mahakumbh. And whatever the state is good in, I mean they should. अब काशी जो भी उन्होंने बनाया है spiritual tourism के, if it is generating thousands of crores where employment is concerned, तो तकलीफ क्या है? it is there, रखा है। राम जी ऐसा है, अयोध्या, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल is transformed अयोध्या। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में जो सरदार सरोवर डैम है, जिसके डूब एरिया में, जिसको डूब एरिया कहते हैं ना, जहाँ पे सबमर्ज, द एरिया विच इज टू बी सबमर्ज, जिसको डूब कहते हैं, डूबना मतलब ड्राउन, अंग्रेजी में दिस एरिया टू बी सबमर्ज्ड, वहाँ पे बहुत ट्राइबल लैंड था, फॉरेस्ट वगैरह थे, वो डूब गए। उसके पहले आपको याद होगा मेधा पाटकर जी का एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको याद होगा। उसमें हम भी सम्मिलित थे, हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ देखा। लेकिन आज की तारीख में उस सरदार सरोवर डैम की वजह से हर जगह पे गुजरात में पानी आ रहा है, मध्य प्रदेश में पानी आ रहा है, हर जगह पे बिजली आ रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल पावर कट्स आर अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब मेरा ये कहना है
कि आपको पावर जनरेट नहीं करनी है, आपको इरिगेशन के लिए पानी नहीं देना है, आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं आप। और तीसरी चीज ये है, जैसे हमारे आदिवासी हैं, आप क्यों चाहते हैं that these Adivasis should remain exactly where they were 5,000 years ago and to remain exactly in that same time warp for anthropological studies। अरे आपके पास अगर एसी है घर में, आप गाड़ी में जाते हैं, तो वो जो आदिवासी है कि वो भारत देश का नागरिक नहीं है, वो क्यों ना जाए अपनी गाड़ी में, उसके पास भी एसी क्यों ना हो और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में क्यों ना जाएं। क्यों चाहते हैं कि वो सिर्फ जंगल में ही रहे और ऊपर जा करके वो क्या है, वो मधुमक्खियों का जो छत्ता है उसमें से शहद निकाले। आई मीन दिस इज क्रेजी। दिस shows a certain upper caste arrogance which is terrible। जी प्रदीप जी। And the vultures who feed on these kind of Yes, it is bread and butter for them। That's right। It's bread and butter for them। The people are suffering, they can't do anything, malnutrition है, there's no development in that Sir, particular there is area, tuberculosis। there's no schools in that particular area। They release this kind of an environment to paint India in that particular brush that he has nothing। But criticism to a certain level is okay। अगर नहीं है तो नहीं है, सरकार के साथ बनके वहाँ पर बनाओ। Now this state is willing to go the extra mile। यानी कि लास्ट सिटी इज द फर्स्ट जी, यू कांट प्रिवेंट प्रोग्रेस। सीधी सादी बात है। जो फ्लाईओवर्स बन रहे थे मुंबई शहर में, आपको याद होगा 1995 में जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहले मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे, गोपीनाथ मुंडे जी डिप्टी सीएम थे, उसके बाद नारायण राणे जी सीएम बने, गोपीनाथ मुंडे जी डिप्टी सीएम रहे, लेकिन नितिन गडकरी साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। 42 फ्लाईओवर बनाए थे उन्होंने। एक्चुअली वो बोलते हैं 48, मैंने 42 गिने, लेकिन नितिन गडकरी साहब से बात करो हमेशा 48 की बात करते हैं। उसके अलावा मुंबई पुणे हाईवे जो बनी है वो भी तब बनी है, उसके खिलाफ भी पीआईएल डाली थी। प्रदीप जी, जितने फ्लाईओवर है उनके खिलाफ भी पीआईएल डाल रखी थी। और तो और छोड़िए, उसकी वजह से जो पेडर रोड का फ्लाईओवर है वो नहीं बन पाया। वो छोटा सा जो फ्लाईओवर था वो जो बहुत सालों पहले बना था, वो वही का वही है, बिल्कुल वैसा ही है। मेट्रो के खिलाफ जो आज की तारीख में मुंबई में मेट्रो का काम जो चल रहा है और बाकी हर जगह पे मेट्रो की सहूलियत जो है वो लोगों को मिल गई है, उसके खिलाफ भी पीआईएल डाल दी थी लोगों ने। ये तो अच्छा हुआ कोर्ट्स ने कहा भाई यू कांट स्टॉप डेवलपमेंट, वी आर वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू वेरी मच, go away somewhere else and find those people who had filed that writ। My point is, at the end of the day, look at the arrogance of people। How can you stop proper infrastructure from being built? So is the case with the Mahakumbh। इस बार Mahakumbh has been organized in a particular manner where people from abroad can come in and sit over there। My only objection to the Mahakumbh, and it remains the same by the way, and has been there for the last 30 years, actually I've been a journalist for 40 years, is that the water of the Ganga is still polluted। आपने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया। आपने वादा किया था कि गंगा का पानी अविरल होगा, गंगा का पानी निर्मल होगा और गंगा का पानी पवित्र होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। But that will take us into another debate, right? That's it, that's all we've got for you in tonight's show। एक बार फिर प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को पोंगल की, बिहू की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को साहब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरी चीज, अपने कमेंट जरूर भेजें। However colorful they are, we love reading your comments। That's it, that's all we've got for you in tonight's show। आप सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम।